Pradam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Lasit Governmental Guru. Let's complete. Today, I will discuss measurement and evaluation. It is part 4. In this part, I will discuss reliability. It is very important part. So, features of reliability, factors affecting reliability, different methods of reliability, but two important methods are there. Always question is coming. It is split half method and Cooder Richardson method. Also, I will discuss with example. In this part also, I will discuss 12 MCQs. It means each and every time my video always contain explanation with MCQs. So it is measurement and evaluation part 4. Very useful for UPSC principal and vice principal exam. So my friends, please subscribe my channel. Asit Government Rule Guru, let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So if you see my video, please do not forget to click on the subscribe button. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So again, join my WhatsApp number. It is 8327782034. Any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss about reliability. First one, concept and determining factors. Right. So you see, what is the meaning of reliability? Reliability means consistency and stability of measurement result. For example, you see, if you conduct a test, right? If you conduct a test, suppose the child score, suppose you conduct math test, the child score 70. According to the pattern, the question pattern, just you prepare the question paper and conduct the test. The child secures 70 mark. Then after 1 week, after some days, again you conduct the same test. Same pattern of test, same conditions, same suppose easy, average and difficult based question, same pattern, same conditions, and then the child score suppose 72, very nearer to each other. Okay, so it means the test is reliable one. Okay, so like this, it is clearly given in simple words. If a test gives nearly the same result when repeated under similar conditions, the test is considered reliable. सो उसमें कुछ जैसे आपको याद रखना है, सपोज पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, देन कंडीशंस, राइट. सो देन इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट बेस्ड क्वेश्चन सब सेम रहेगा, टेस्ट कंडक्ट होगा. आफ्टर सम टाइम यू कंडक्ट द सेम टेस्ट and the score of the child just it is around the first score, it means it is reliable one. So reliability, before example, discussion of example, I want to tell two things. One is related to time, one is related to forms, right? Time related, first test the child score 70 marks. Okay, the pattern of question, according to the pattern of question paper prepared, and first test the child secured 70 mark. Suppose after 7 days, then again the test, again the same test conducted, and the child secure 72 mark. Okay, just very close to each other. So it means gap is after certain days. After 7 days, the same test is conducted and the mark 72. So 70, 72, just it is very nearer. So it means the test is reliable one. Forms means, suppose first test the child secure 70 marks, but forms means actually the question paper is not same. Same pattern of question, same difficulty level, same conditions,
right? But the it means questions are not same. Okay, questions are different, but conditions same, pattern of question same, difficulty level same. Okay, so second test, suppose child secure 71, very close to each other, so the test is reliable one. So one is time, one is forms. So time, the same question paper. Okay, the same question paper, the child after some gap, by using the same question paper, the child faced the exam, and the first test mark and second test mark just very near or very close to each other. It is the time. Forms means uh, questions are not same. Questions are not same, but pattern, conditions, difficulty level, all are same. Okay, but questions are different. Again, the test is conducted. So the marks are very close to each other. It is reliable one. So two ways I have discussed. So you see one example here it is given. Suppose a student takes the same mathematics test twice under similar condition. Similar conditions means pattern of question same. Okay, and what type of instructions given in the question paper same, difficulty level remains same. Okay, so first score 75, second score 76. So it is, the test shows high reliability because the scores are very close to each other. So reliability means consistency and stability of measurement, right? Key features you see, key traits of reliability. First one, consistency. So consistency means if a reliable test always gives similar results when repeated. If the test is repeated, so the result, the value of the result is very close to each other. If it is not same, the value of the result is very close to each other. It is consistent. So a reliable test gives similar results when repeated. The same test is repeated and the score of the child is around the first score. Okay, so reliable test means when the similar results we get after repeating the test. Then next one, very important term, internal consistency. The questions within a test should consistently measure the same skill or ability. The questions within a test should consistently measure the same skill or ability. Same skill ability की जब हम measure करेंगे. Suppose for example, suppose you see related to the internal consistency. Suppose algebra. आप अलजेब्रा के ऊपर टेस्ट कर रहे हो, ओनली अलजेब्रा क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि हम हमारा जो मेन एम है कि टू डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इन अलजेब्रा. चाइल्ड का एबिलिटी क्या है अलजेब्रा पार्ट में, हम उसको चेक करेंगे. तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो रिलेटेड टू द अलजेब्रा रहेगा. इसमें कोई ज्योमेट्री पार्ट नहीं आएगा, उसमें कोई मेंसुरेशन पार्ट नहीं आएगा, इसमें कोई त्रिगोनोमेट्री पार्ट नहीं आएगा, ओनली अलजेब्रा. तो इसमें क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी मींस हम ऐसे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस सेट करेंगे और हमको मेजर करना है द सेम स्किल और एबिलिटी. ठीक है, तो इट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी. और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आप लीनियर इक्वेशन के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो. सो जो क्वेश्चंस रहेगा, जैसे मैं यहां पर 3x + 5 = 7 कि 4x + 8 = 11 कि सपोज 5x + 9 = 20, like this. Okay, the similar type of questions asking. Okay, so in case of linear, so our main it means intention is to measure the same skill or ability. It is internal consistency. It is very important one, very important term. Okay, next one refers to results. Reliability describes the consistency of the results. Consistency means the same test is repeated under same conditions. The test is repeated. मैं बोला था टाइम एंड सेकेंड वन फॉर्म.
time में after some gap the same question paper faced by the child and we see the marks, compare the marks are very close to each other. Similarly forms, questions are changed, the questions को हम change कर देंगे. Okay, the questions of the paper have changed but the pattern, difficulty level, conditions, instructions all are same. Okay, and जो क्वेश्चन पेपर पहले था कि हम ये स्किल को मेजर करेंगे, जो सेकेंड टाइम जो क्वेश्चन पेपर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर के साथ उसका सेम जो पैटर्न रहेगा, डिफिकल्टी लेवल रहेगा और हम सेम स्किल को मेजर करेंगे, उसमें भी जो मार्क आएगा, रिजल्ट आएगा वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो इसमें रिफर टू रिजल्ट्स मींस रिलायबिलिटी डिस्क्राइब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स. हम नॉट द फिजिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, हम फिजिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट हम क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे. ओके, क्वेश्चन पेपर जिसमें प्रिपेयर किया गया था, सपोज हम लैपटॉप की, डेस्कटॉप, इसको नहीं देखेंगे. हमारा मेन है हम रिजल्ट को चेक करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो रिफर टू रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट के ऊपर फोकस होगा. हम क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर करने के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज किए थे उसके ऊपर हमारा कोई इट मींस पर्पज नहीं है कि हम उसको डिटेक्ट करेंगे. हमारा मेन जो पर्पज है हम रिजल्ट को डिटेक्ट करेंगे. सो रिलायबिलिटी डिस्क्राइब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स, नॉट द फिजिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ स्टेबिलिटी. टाइप ऑफ स्टेबिलिटी में बताया था रिलायबिलिटी कैन इंडिकेट हाउ स्टेबल रिजल्ट्स आर, हाउ स्टेबल रिजल्ट्स आर ओवर टाइम. ओवर टाइम भाई, सपोज आप फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया, 70 मार्क्स आया. आफ्टर सम गैप सेकेंड टेस्ट, सपोज आफ्टर सम गैप, सपोज आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज सेकेंड टेस्ट कंडक्ट किया गया, सेम क्वेश्चन पेपर. ओके, जो फर्स्ट टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर था सेकंड टेस्ट में सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा. इसमें 70 मार्क्स है, इसमें 72 आएगा, मगर इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा. ओनली ओवर टाइम, ओनली आफ्टर फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ, चाइल्ड को मार्क मिला 70, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 2 वीक्स, ओके, सेम टेस्ट को फिर द चाइल्ड फेस किया, क्वेश्चन पेपर सेम रहा. सो सेकेंड टेस्ट में चाइल्ड एक्चुअली सिक्योर 72 मार्क्स. सो 77 वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये ओवर टाइम. तो रिजल्ट इज कंसिस्टेंट वन. टाइप ऑफ स्टेबिलिटी में अनदर वन, फॉर्म्स और आइटम्स. फॉर्म्स और आइटम्स, इसमें आप फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया, चाइल्ड को 70 मार्क मिला. ठीक है, सेकेंड टेस्ट में इसमें जो क्वेश्चंस को हम चेंज किया, बट ये सब सेम रहा. पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि डिफिकल्टी लेवल है. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल है, ये सब सेम रहा. पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिफिकल्टी लेवल, इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ये सब सेम रहा. ओनली स्लाइटली हम क्वेश्चंस को चेंज कर दिए. तो फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क मिला, सेकेंड टेस्ट में 72 मार्क मिला, वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो ये भी हम बोलेंगे कि टेस्ट इज रिलायबल वन. तो ये स्टेबिलिटी दो, ओवर टाइम, सेम क्वेश्चन पेपर फेस बाय द चाइल्ड, एंड फॉर्म्स, स्लाइटली क्वेश्चंस को हम चेंज करेंगे मगर डिफिकल्टी लेवल, उसका जो इंस्ट्रक्शन, उसका जो पैटर्न कोई चेंज नहीं होगा. और हमारा जो टेस्ट में क्या होगा, हम पर्टिकुलर स्किल और एबिलिटी को हम मेजर करेंगे. ओके, फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में हमारा जो पर्टिकुलर स्किल को मेजर करेंगे, वही स्किल को हम मेजर करेंगे, वो भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो इट इज टाइप ऑफ स्टेबिलिटी. देन नेक्स्ट वन, नेसेसरी फॉर वैलिडिटी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ए टेस्ट जनरली नीड्स टू बी रिलायबल टू बी वैलिड, बट रिलायबिलिटी अलोन डज नॉट गारंटी वैलिडिटी. देखिए, वैलिड का अर्थ में बोला था, वैलिडिटी का मीनिंग यही है कि जिस पर्पज के लिए, जिस इंटेंशन के लिए, जिस डिजायर के लिए हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, सपोज वो फुलफिल होगा, वही है वैलिडिटी. जिस पर्पज के लिए हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर विच पर्पज एक्चुअली वी आर कंडक्टिंग टेस्ट, इफ इट इज फुलफिल्ड, वो वैलिडिटी है. मगर यहां पर क्या है, नेसेसरी फॉर वैलिडिटी, यदि टेस्ट रिलायबल होगा, ठीक है, ये टेस्ट जनरली नीड्स टू बी रिलायबल टू बी वैलिड. जो टेस्ट रिलायबल होगा वो वैलिड होगा.
मगर रिलायबिलिटी अलोन अकेला वो गारंटी वैलिडिटी को नहीं देगा, याद रखिए। मगर ये है कि ओवरऑल हम देखेंगे एवरेज बेसिस में कि टेस्ट रिलायबल होगा, टेस्ट कंसिस्टेंट होगा, टेस्ट में स्टेबिलिटी रहेगा, तो टेस्ट वैलिड होगा। बट रिलायबिलिटी अलोन डज नॉट गारंटी वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी से हम ये बोल रहे हैं कि जब टेस्ट रिलायबल होगा तब वो टेस्ट को वैलिड कहा जाएगा। मगर रिलायबिलिटी एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि वो वैलिडिटी को गारंटी देगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट आगे में हम देखेंगे, जो डिफरेंट मेथड से, जैसे टेस्ट रीड टेस्ट मेथड है, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स मेथड है, और बहुत पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, स्प्लिट हाफ मेथड है, और कुडर रिचर्डसन मेथड है, और इंटर रेटर रिलायबिलिटी मेथड है। सो 5 मेथड्स है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, रिलायबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स सच एज रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, उसके ऊपर हम आगे में डिस्कस करेंगे। प्रेसिशन, हायर रिलायबिलिटी मींस लेस मेजरमेंट एरर। जब टेस्ट एक्चुअली हाईली रिलायबल होगा, हम ये सोचेंगे कि मेजरमेंट एरर बहुत कम है, और उसको ही ग्रेटर प्रेसिशन बोलेंगे। तो याद रखिए, तो इट मींस टेस्ट इज मोर रिलायबल मींस error is less. Okay, chance of error is less. Okay, so it is greater precision, right? So ये जो था traits था, features of reliability था। Next one, another one you see, internal consistency and stability. It can examine whether items are consistent with each other and whether scores remain stable. जो भी आइटम्स, जो भी क्वेश्चंस हम देंगे, वो दे आर वेरी इंटरडिपेंडेंट टू इच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर। ओके, जो सपोज, जैसे मैं बता रहा हूं, सपोज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको आपका जो इंटेंशन है कि हम चाइल्ड का एबिलिटी की स्किल को चेक करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, तो ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दीजिए। ठीक है, तो जो भी रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। जैसे सपोज मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह का एक क्वेश्चन रहा। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। ओनली क्वाड्रेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जो आइटम्स रहेगा ओनली मैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड एग्जांपल्स दिया, तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस दे सकते हो और रूट्स निकालने के लिए बोलोगे। ठीक है, तो ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा, उसमें हम लीनियर इक्वेशन नहीं देंगे, उसमें हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं देंगे, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स नहीं देंगे। तो जो आइटम्स रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्किल, जो हमारा हम क्या चेक करना चाहते हैं, किस तरीके का स्किल एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि चाइल्ड का क्या कमांड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, चाइल्ड कितना एक्चुअली उसका एबिलिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। देन डिपेंड्स ऑन टेस्ट लेंथ, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। डिपेंड्स ऑन टेस्ट लेंथ मींस आप जो टेस्ट में बहुत क्वेश्चंस होगा, सभी जितना कंटेंट है सभी कंटेंट से क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल कंटेंट्स हम क्या करेंगे, लिमिटेड कंटेंट से क्वेश्चन कर देंगे, एक शॉर्ट टेस्ट कर देंगे, वो ज्यादातर मोर रिलायबल नहीं होगा। तो डिपेंड्स ऑन टेस्ट लेंथ, जब टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस होगा और सभी कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हाईली रिलायबल होगा, याद रखिए। तो क्वालिटी क्वेश्चंस होना चाहिए और एवरी कंटेंट से होना चाहिए, और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। आजकल पैटर्न ऑफ देखिए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा था, मगर अभी क्या है, उसको स्प्लिट, सपोज 6 मार्क है, उसको 2 + 2 + 2 कि 2 + 3 + 1, लाइक दिस। सो मोर क्वालिटी क्वेश्चंस देना है, और सभी कंटेंट को वो कवर करेगा, सभी कंटेंट डोमेन को कवर करेगा, तब हम हाईली रिलायबल बोलेंगे। तो जनरली ए वेल डिजाइन्ड टेस्ट with more suitable items can have higher reliability than a very short test. ठीक है, अच्छा, ये सब ट्रेड्स चला गया, फीचर्स। अभी हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। क्या क्या फैक्टर्स है जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। यू सी, फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ द टेस्ट, मैं अभी बताया था, मोर गुड क्वालिटी आइटम्स जनरली इंक्रीज रिलायबिलिटी।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि उसमें मोर क्वेश्चंस होता है और क्वालिटी क्वेश्चंस होता है। मोर क्वेश्चंस होगा और क्वालिटी, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को देखा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होता है, मोर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो क्वेश्चंस में भी क्वालिटी है, तो वही है। तो सभी कंटेंट को कवर किया जाएगा, जो सिलेबस है, सभी जो कंटेंट है, सभी कंटेंट को कवर करके मोर क्वेश्चंस दिया जाएगा और क्वालिटी क्वेश्चंस रहेगा, तब वो इट जनरली इंक्रीज रिलायबिलिटी। अच्छा, टेस्ट का कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ द आइटम्स, डिफिकल्टी लेवल, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, आइटम इंटरडिपेंडेंस, alternative responses, these are the it is very important one. टेस्ट कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ आइटम्स, आप जो टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको चेक करना है, व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द चाइल्ड यू वांट टू चेक। तो उसके हिसाब से उस तरीके से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है। फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ आइटम्स, डिफिकल्टी लेवल, सपोज कितना इजी क्वेश्चन रहेगा, कितना एवरेज क्वेश्चन रहेगा, कितना डिफिकल्टी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं 50% एवरेज, ठीक है, और जैसे आप 30% इजी एंड 20% डिफिकल्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको मेन नेचर ऑफ द आइटम, सपोज आप टेस्ट करना चाहते हो कि सपोज आप टेस्ट करना चाहते हो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, तो इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है, मोर क्वेश्चंस और क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल आपको इजी, एवरेज एंड डिफिकल्टी क्वेश्चंस रखना चाहिए, ठीक है। ओनली माने ये नहीं करोगे कि पूरा क्वेश्चन इजी है कि पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ऐसा होगा तो आप कौन सा चाइल्ड एक्चुअली गिफ्टेड है, अच्छा जो इट मीन्स वेरी गुड चाइल्ड है, कि एवरेज चाइल्ड है, कि स्लो लर्नर है, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें इजी, एवरेज, डिफिकल्टी रहेगा। क्वेश्चंस को पूरा टफ कर दोगे और क्वेश्चंस को पूरा इजी कर दोगे, तब आपको इट मीन्स आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चाइल्ड एक्चुअली अच्छा है और कौन सा चाइल्ड एवरेज है और कौन सा चाइल्ड एक्चुअली सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, जब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जब एग्जामिनर चेक करेगा वो उसका पर्सनल बायस नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें पर्टिकुलर आंसर है, तो वो उसमें एग्जामिनर बायस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी, इसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसमें जो एग्जामिनर जब चेक करेगा कॉपी, उसका पर्सनल बायस से वो मार्क नहीं देगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मगर जब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली एग्जामिनर पर्सनल बायस हो जाएगा, ठीक है। आइटम इंटर, जो आइटम्स हम देंगे दे आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, उसमें इंटरडिपेंडेंस रहेगा, राइट। एंड रेस्पॉन्सेस, आप जब एक एमसीक्यू देते हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, उसमें ऑप्शंस जितना दोगे अच्छा है। ऐसे ऑप्शंस आप दे दिए एमसीक्यू में, इसमें एक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चाइल्ड चूज करेगा, ओके। अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेस आपको देना है। तो ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन मोर रिलायबल होगा जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देना है नेचर ऑफ आइटम्स, डिफिकल्टी लेवल, और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जैसे आपका एग्जामिनर पर्सनल बायस नहीं होगा, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्किल एंड एबिलिटी को चेक करेंगे, चाइल्ड का एक स्किल एबिलिटी को चेक करेंगे। और अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेस रहेगा, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, उसका रेस्पॉन्सेस रहेगा, 4 रेस्पॉन्सेस दे दो, वो एक करेक्ट आंसर चूज करेगा। सो आर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रिलायबिलिटी। तो इसमें मोर अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेस विल इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। आप जब एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, ABCD, III, IV, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, मोर अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेस रहेगा तो टेस्ट मोर रिलायबल होगा। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ द ग्रुप। नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हेटेरोजेनियस ग्रुप, स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज जनरली गिव्स हायर रिलायबिलिटी। डिफरेंट ग्रुप्स रहेगा, एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं रहेगा, एक हेटेरोजेनियस ग्रुप रहेगा। हेटेरोजेनियस मींस डिफरेंट चाइल्ड हैविंग डिफरेंट एबिलिटी,
तब जब टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा चाइल्ड है, और एवरेज चाइल्ड कौन है, और वीक चाइल्ड कौन है। ठीक है, तो हमको हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस ग्रुप लेने से सबका स्कोर इक्वल रहेगा। होमोजीनियस लेने से क्या है, सबका एबिलिटी सेम है। होमोजीनियस जब हम ले जाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स है उनका एबिलिटी सेम है, तो स्कोर लगभग सेम रहेगा, तो उसमें हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हु इज द बेस्ट वन, हु इज एवरेज वन एंड हु इज वीक वन। तो इसलिए जब भी हम रिलायबिलिटी को चेक करेंगे तब हम नेचर ऑफ द ग्रुप में हेट्रोजीनियस ग्रुप को लेंगे, स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, तब हम डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो हायर रिलायबल होगा, उसके ऊपर वो हायर रिलायबल होगा, क्योंकि वहां पर हम डिटेक्ट करेंगे कि हु इज द बेस्ट चाइल्ड, हु इज द एवरेज चाइल्ड एंड हु इज द वीक चाइल्ड। तो वीक चाइल्ड के लिए रिमेडियल मेजर्स होगा कि एवरेज चाइल्ड को और मोटिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, और न्यू इट मींस इनिशिएटिव्स एक्चुअली शुड बी टेकन बाय द टीचर। ठीक है, तो जो गिफ्टेड, जो अच्छा चाइल्ड है उसको और हॉट क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द ग्रुप हेट्रोजीनियस होना चाहिए, तब जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो हाईली रिलायबल होगा। अच्छा, टेस्टिंग कंडीशंस, सिमिलर एंड सुइटेबल फिजिकल एनवायरमेंटल। अच्छा, कंडीशंस क्या है टेस्टिंग कंडीशंस? प्रॉपर इट मींस एग्जामिनेशन रूम, proper infrastructure is available, proper space is there, proper gap is there among the students, very quiet atmosphere, instructions given on the blackboard, it is very clear one, and electricity it is available. Okay, suppose fan available, so the child feel comfort. Test conditions वही है, environment, okay, peace, instructions given on the blackboard, कि इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स, क्वाइट एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये सब टेस्टिंग कंडीशंस है। सो सिमिलर एंड सुइटेबल, सब भी स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर कंडीशंस रहेगा। नेक्स्ट वन, गेसिंग एंड चांस एरर्स। सपोज जब ऐसा क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, उसमें क्या होगा, ज्यादातर चाइल्ड वो गेस करके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सपोज हम MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैक्सिमम चाइल्ड गेस के आकार में आंसर दे रहे हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन आंसर करेक्ट है, वो गेस, ज्यादातर गेस इट मींस करके ओनली आंसर दे रहे हैं, तो उसमें रिलायबिलिटी कम हो जाएगा। तो मोर गेसिंग इंक्रीजेस एरर्स एंड रिड्यूसेस रिलायबिलिटी। कभी कभी कोई टेस्ट होगा, क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, बहुत टॉप क्वेश्चन है, तो उसमें चाइल्ड क्या किया, उसको आंसर मालूम नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो गेस करके वो आंसर चूज कर रहा है, तो इस तरीके का टेस्ट क्या है, उसका रिलायबिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, वेरी क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, इंप्रूव कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, वेरी क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, टू इजी और टू डिफिकल्ट आइटम्स, ये से नहीं, पूरा इजी हम क्वेश्चंस कर देंगे और पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देंगे, ये होगा तो हम जो बेस्ट चाइल्ड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बेस्ट चाइल्ड, एवरेज चाइल्ड और वीक चाइल्ड हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या होगा, उसमें इजी रहेगा, एवरेज रहेगा और डिफिकल्टी क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब फ्रेम होगा, हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा चाइल्ड क्या एबिलिटी है, और उसमें हम सब्जेक्ट में जो अच्छा चाइल्ड है, एवरेज चाइल्ड है और वीक चाइल्ड को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सच आइटम्स कैन नॉट प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, पूरा इजी होगा और पूरा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आप अदर फैक्टर्स ले जाइए, एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी, क्लरिकल एरर्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टेस्ट एंड प्रैक्टिस इफेक्ट्स कैन आल्सो अफेक्ट रिलायबिलिटी, अदर फैक्टर्स। इजी फॉर्मूला, इसको आपको रिमेंबर करना है, टेस्ट लॉन्ग होना चाहिए, जिसमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस मोर, बट क्वेश्चन पे क्वालिटी रहेगा। ठीक है, और गुड क्वेश्चंस देना है, हेट्रोजीनियस ग्रुप को लेना है, जो चिल्ड्रन को टेस्ट को फेस करेंगे, दे आर हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज, तब हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा चाइल्ड बेस्ट है, एवरेज है और वीक है। सेम कंडीशंस रहेगा, सबको सेम कंडीशंस, क्वाइट एटमॉस्फेयर रहेगा, वाटर फैसिलिटी रहेगा, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी रहेगा, लाइट फैसिलिटी रहेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रहेगा, सबको सेम कंडीशंस रहेगा। ओके, क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहेगा, वेरी इजी एंड वेरी फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शंस रहेगा, और जो चाइल्ड जो आंसर कर रहा है वो लेस गेसिंग। तो ये सब फैक्टर आने से वो टेस्ट हायर रिलायबल होगा। अभी क्लियरली अंडरस्टूड?
तो इसको याद रखना है। ज्यादातर जो एमसीक्यू टेस्ट, जो लॉन्गर टेस्ट है, ज्यादातर एमसीक्यू क्या है, ज्यादातर सक्सेसफुल है, क्योंकि मोर क्वेश्चंस रहेगा और क्वेश्चंस में क्वालिटी रहेगा, ठीक है, गुड क्वेश्चंस रहेगा। तो उसमें हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है जो बोर्ड एग्जाम में, आप देखिए उसमें स्प्लिट हो रहा है। आप जैसे 4 मार्क है, वो 1 1 2, बीट A1, बीट B1 एंड बीट C2, लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, डिफरेंट मेथड्स को चलेंगे। मैं बार बार बताया 5 मेथड्स है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड है, कुडर रिचर्डसन मेथड है, और इंटररेटर रिलायबिलिटी मेथड है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसको याद रखिए, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता है। एक है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, फर्स्ट वन, इट इज स्टेबिलिटी, इट मीन सेम टेस्ट, give the same test to the same group twice। सेम टेस्ट को एक ग्रुप 2 बार उसको फेस करेगा, विथ ए सम टाइम गैप रहेगा, विथ ए टाइम गैप बिटवीन द 2 टेस्ट। सेम टेस्ट को रिपीट किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम गैप दे दिया जाएगा। आप फिर स्कोर चेक करेंगे, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट, सेम टेस्ट है, सेम क्वेश्चन पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। सपोज अभी फर्स्ट टेस्ट हो गया, उसमें 2 वीक्स गैप दे दो, फिर सेकेंड टेस्ट, ये दोनों में स्कोर को, इसमें क्या स्कोर था, इसमें क्या स्कोर है, आप देख लीजिए, वेरी क्लोजर टू ईच अदर, मार्क्स आर वेरी क्लोजर। सपोज इसमें 70 है, इसमें 72 है, वेरी क्लोजर मीन्स इट इज मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड वही बोल रहा है, same test is repeated after certain time gap and we check the score. If score are very close to each other, then more reliable, more consistent, more stability, ठीक है, वेरी इजी मेथड है। सेकेंड वन, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स मेथड। अच्छा, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स मेथड, स्टेबिलिटी एंड, अच्छा सेकेंड टाइम टेस्ट होगा, मगर क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाएगा, मगर जो ये सब फैक्टर्स को हम ले जाएंगे। सपोज हम देखेंगे पैटर्न को देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसमें सपोज डिफिकल्टी हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और फॉर अदर कंडीशंस, ये सब सेम रहेगा, अदर कंडीशंस ये सब सेम रहेगा, ठीक है, ये सब सेम रहेगा फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट में। ओके, पैटर्न सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, अदर कंडीशन सेम रहेगा, ओनली क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। हम स्कोर को चेक करेंगे, वही है सेकेंड मेथड, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स मेथड। इसमें हम जो कोफिशिएंट डिटेक्ट करते हैं, वो कोफिशिएंट को हम यहां पर इंफॉर्म किया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, ये होता है, ये जो सेकंड मेथड, कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस हम मेजर करते हैं यहां पर। प्रिपेयर 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट एंड गिव बोथ टू द सेम ग्रुप को देना है। प्रिपेयर 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट एंड गिव बोथ टू द सेम ग्रुप विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड कंपेयर द स्कोर। ओके, चेक वेदर द 2 सिमिलर वर्जन्स ऑफ ए टेस्ट गिव सिमिलर रिजल्ट और नॉट। तो ओनली क्या है, फॉर्म्स मीन्स सभी कंडीशन सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, फिजिकल कंडीशन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ओनली क्वेश्चंस को हम चेंज करेंगे। ओके, मगर सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फिर स्कोर को चेक करेंगे। तो उसमें हम जो सेकेंड में एक क्वेश्चन आता है, जो हम कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं। कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो हाई रिलायबल होगा, कोफिशिएंट कम होगा तो लेस रिलायबल होगा। तो उसमें जो हम चेक करते हैं इसी सेकंड मेथड में, ये है कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। आप याद रखिए, इसमें हम जो चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, सेकंड वन।
फिर हम थर्ड वन को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड। इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे स्प्लिट हाफ मेथड, जो फॉर्मूला है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसमें क्या होगा, गिव द टेस्ट वंस होगा, मगर हम टेस्ट को दो भाग में डिवाइड कर देंगे। ओके, देखिए टेस्ट को हम क्या करेंगे, इसमें 2 वे में डिवाइड कर देंगे। एक ऑड क्वेश्चंस रहेगा, एक ऑड क्वेश्चंस हम देखेंगे, और एक में इवन क्वेश्चंस। ये दोनों में कोरिलेशन को चेक करेंगे। ये दोनों में ऑड क्वेश्चंस जैसे आ जाएगा 1, 3, 5, ओके 7, 9, ये सब चेक करेंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 ऐसे। तो ये ऑड क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस, तो दो हाफ कर देंगे। सपोज जैसे 50 क्वेश्चंस है, 25 ऑड क्वेश्चंस, इसमें 25 आ जाएगा और इसमें 25 आ जाएगा इवन क्वेश्चंस। फिर हम दोनों को कोरिलेट करेंगे, ये दोनों को कोरिलेट करके हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो वो है स्प्लिट हाफ। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे में। जो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए स्पीयरमैन एंड ये है फॉर्मूला है स्प्लिट हाफ। सो गिव द टेस्ट वंस, डिवाइड द टेस्ट इनटू 2 हाफ्स। ऑड नंबर क्वेश्चंस उसको चेक किया जाएगा एंड इवन नंबर आइटम्स को चेक किया जाएगा, एंड दोनों को हम कोरिलेट करेंगे। ऑड क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस। सपोज टोटल क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है, उसमें 15 ऑड क्वेश्चंस रहा और इसमें 15 इवन क्वेश्चन, ऐसे हम स्प्लिट कर देंगे। ओके, फिर हम दोनों का स्कोर को कोरिलेट करेंगे और उसमें हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो उसमें जो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला बहुत फेमस है। ये देखिए स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला इज यूज्ड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी ऑफ द फुल टेस्ट। ओके, तो फुल टेस्ट का रिलायबिलिटी क्या रहेगा, वो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो चेक्स वेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम टेस्ट आर कंसिस्टेंट और नॉट। हम ऑड क्वेश्चंस को देखा, इवन क्वेश्चंस को चेक किया, तो दोनों को हम कोरिलेट करके, और ऑड क्वेश्चंस में ऑड क्वेश्चन जो चाइल्ड अटेम्प्ट किया कितना मार्क रखा, इवन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कितना मार्क रखा, उसको हम कोरिलेट करेंगे। यदि बहुत क्लोजर है, ऑड क्वेश्चंस में जो मार्क आ रहा है वेरी क्लोज आ रहा है, इवन में भी बहुत क्लोज आ रहा है, तब वो हम सोचेंगे कि टेस्ट कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये है स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन कुडर रिचर्डसन मेथड। ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को फोकस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा स्प्लिट हाफ मेथड इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को फोकस करता है। गिव द टेस्ट वंस एंड यूज द कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द, कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कैलकुलेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। चेक वेदर टेस्ट आइटम्स कंसिस्टेंटली मेजर द सेम एबिलिटी और नॉट, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे में। और नेक्स्ट वन है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। देखिए इसमें क्या होगा, मोर देन वन एग्जामिनर होगा। कंसिस्टेंसी बिटवीन रेटर्स, रेटर एग्जामिनर्स बा जजेस, 2 और मोर रेटर्स। ओके, 2 और मोर रेटर्स और जजेस आप ले जाइए इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली स्कोर देंगे। ओके, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सेस को देख के स्कोर देंगे एंड देयर स्कोर्स आर कंपेयर्ड। तो मोर देन 2 जजेस ऑब्जर्व करेंगे और स्कोर देंगे और उनका स्कोर को कंपेयर किया जाएगा। तो जब कंपेयर किया जाए, सपोज एक का 50 मार्क्स दिया, एक 51 दिया और एक 49 दिया, तो बहुत क्लोज है। तो तब क्या होगा ना, जो जिस पर्पज के लिए टेस्ट किया जा रहा है और जो रेस्पॉन्स में जो मार्क मिला वो बहुत क्लोजर है, तो रिलायबल है, हाईली रिलायबल है, ठीक है। तो ये है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा स्प्लिट हाफ मेथड, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, और एक रहेगा कुडर रिचर्डसन जो केआर मेथड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि स्प्लिट हाफ मेथड, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप देखिए स्प्लिट हाफ मेथड में ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। द स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला इज यूज्ड इन द स्प्लिट हाफ मेथड टू एस्टिमेट द रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट फ्रॉम द रिलायबिलिटी ऑफ वन हाफ ऑफ द टेस्ट। मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये है हम एक्चुअली
ये जो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से जो RxX हम बोल रहे हैं, ये हम फुल टेस्ट का रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। ये है एस्टिमेटेड देखिए एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट का रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। ये जो सिंबल है, ठीक है, तो ये जो स्मॉल r डबल x है, वो सिंबल है कि हम चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट। मगर इसमें और एक सिंबल है R डबल H, तो इसमें ये जो सिंबल है ये ओनली स्प्लिट हाफ मेथड, जो हाफ हाफ कर दिया गया, ऑड इवन, उनके बीच में जो मार्क्स को हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स। इसमें क्या होगा, हम ऑड क्वेश्चंस देखेंगे, इवन क्वेश्चंस देखेंगे, और इसमें कितना मार्क आया, इसमें कितना मार्क आया, ये दोनों के बीच में हम कोरिलेट करेंगे, ये दोनों के बीच में मार्क को हम कोरिलेट करेंगे, तो वो RHH है। इट इज द, तो इसमें दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो RxX आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये है जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट। हम होल टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हम निकालेंगे, तो वही है जो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला वही निकल रहा है, RxX निकल रहा है। होल टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को वो क्या कर रहा है ना, डिटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और उसमें स्प्लिट हाफ मेथड तो आप जानते हो कि ऑड क्वेश्चंस हाफ हाफ कर देंगे, ऑड क्वेश्चंस और इवन क्वेश्चंस, ऑड में कितना मार्क रहा और इवन क्वेश्चंस में कितना मार्क रहा, और दोनों को हम कोरिलेट करेंगे, वो है RHH। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दो कोफिशिएंट है, एक होल टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट और एक है जो टू हाफ्स है, टू हाफ्स का कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स, ये RHH, और ये जो है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, जब हम निकालेंगे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द टू हाफ्स, ट्वाइस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस RHH। ट्वाइस न्यूमरेटर में आएगा, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द टू हाफ्स डिवाइड बाय 1 प्लस वही कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला को आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो और एक बार मैं बता देता हूं, जो RHH है आप कैसे निकालेंगे कि ये ऑड क्वेश्चंस है और ये इवन क्वेश्चंस है। इवन क्वेश्चंस का यहां पर आप जैसे ऑड क्वेश्चंस 1, 3, 5, इसमें कितना कितना मार्क आया, इंडिविजुअल मार्क देखिए कितना कितना मार्क आया। इसमें इवन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 2, 4, 6, इसमें कितना कितना मार्क आया। आप फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल दीजिए, स्मॉल r कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल दीजिए, ठीक है। वही है इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकालेंगे, वही है RHH, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, मगर यहां पर याद रखिए जो ऑड क्वेश्चंस का मार्क, इवन क्वेश्चंस का मार्क, ठीक है, उन दोनों को कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट करके जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा वही है RHH, ठीक है। तो जब हम होल टेस्ट के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी जो निकाल रहे हैं वो RxX है, और फॉर्मूला क्या है, RxX इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू हाफ्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स। ये फॉर्मूला को याद रखना है। एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, सपोज ए 50 आइटम टेस्ट, एक्चुअली 50 क्वेश्चंस है, 25 ऑड क्वेश्चंस, 25 इवन क्वेश्चंस। जो इसमें जो 25 ऑड क्वेश्चंस देखिए, 25 क्वेश्चंस ऑड है और 25 क्वेश्चंस इवन है,
ये दोनों का कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकाल दिया। इसमें दोनों का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है ना, 0.60 है। ऑड क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, इवन 25 क्वेश्चंस, इनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है RHH, इट इज 0.60, इट इज गिवन। ठीक है, तो हम यहां पर जो सपोज 50 आइटम टेस्ट दिया है, तो यहां RHH दिया है, तो RHH दिया है मीन्स हम होल टेस्ट का कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी आराम से निकालेंगे। तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है, तो ये दिया है RHH दिया है, इट इज इक्वल टू 0.60, इट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स, जो ऑड क्वेश्चंस और इवन क्वेश्चंस। तो दोनों हाफ का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.60 है। तो होल टेस्ट का, जब हम होल टेस्ट का निकालेंगे, होल टेस्ट का कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 0.60 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.60 ऐसे निकालेंगे तो 0.75 आ गया, 0.75। तो होल टेस्ट का जो कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी है वो 0.75 है। तो इसमें तो आपको समझ में आया। तो ये जो है RHH, इट इज 0.60। ठीक है, ये क्या है ना, इट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हाफ्स। और ये जो आया, इट इज द होल टेस्ट कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट, ये आ गया 0.75। याद रखिए सभी समय जो कोफिशिएंट ऑफ द रिलायबिलिटी, ये सभी समय, इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये सभी समय ज्यादा है। ये देखिए RXX ऑलवेज ग्रेटर देन, ये यहां पर मैं लिख दिया ऑलवेज ग्रेटर देन RHH। इट मींस होल टेस्ट का जो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला में, याद रखिए जो RXX है, ये होल आइटम्स के ऊपर ये कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी है, सभी समय ज्यादा होगा। जो दो हाफ का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो निकाला RHH, उससे सभी समय ज्यादा होगा। यहां पर RXX कितना है आप देख लीजिए, 0.75। अच्छा, तो रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट आप देख लीजिए, तो ये जो है ये इट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द RHH, क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट, मगर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट। तो ऑलवेज RXX ग्रेटर देन RHH, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों होल टेस्ट के ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि पूरा आइटम्स हम ले रहे हैं, इसमें हम ऑड इवन नहीं देख रहे हैं, ये पूरा आइटम्स ले रहे हैं। मगर इसमें क्या है, जो RHH क्यों है, क्योंकि हम हाफ कर दिया, ऑड क्वेश्चंस एक हाफ कर दिया और इवन क्वेश्चंस और एक हाफ कर दिया। तो इसी के वजह से जो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी आ रहा है वो कम आ रहा है। मगर RXX क्यों सभी समय ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें पूरा आइटम्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सेम थिंग इट इज गिवन, व्हाई इज रिलायबिलिटी हायर फॉर द होल टेस्ट, क्योंकि होल टेस्ट में हम सभी क्वेश्चंस को ले रहे हैं, मगर हाफ टेस्ट जो हो रहा है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी है वो कम है। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर और हम दो हाफ कर दिया, तो एक ऑड हाफ एक इवन हाफ, फिर हम उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, कुडर रिचर्डसन मेथड। ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कुडर रिचर्डसन मेथड। तो इसको देखेंगे। फर्स्ट वन, दिस मेथड ऑफ रिलायबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय GF कुडर एंड MN रिचर्डसन। दिस, इसका अल्टरनेट नेम, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता है। दिस इज ऑल्सो, ये जो कुडर रिचर्डसन जो KR मेथड है, इसको हम बोलते हैं रैशनल इक्विवेलेंस मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। ये रैशनल इक्विवेलेंस है, मगर एक पैरेलल और इक्विवेलेंट टेस्ट हुआ था, वहां पर हम बोले थे कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। मगर ये जो KR मेथड है, जो कुडर रिचर्डसन मेथड है, जिसमें हम रिलायबिलिटी को चेक करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी को, इसको बोलते हैं रैशनल इक्विवेलेंस मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, अल्टरनेट नेम। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, भाई सेम थिंग जो मैं बोला था, इंटरनल कंसिस्टेंसी मींस जो हम क्वेश्चंस लेंगे
वो मेजर करेगा सेम एबिलिटी और ट्रेट। देखिए इंटरनल कंसिस्टेंसी मींस क्या है, इट चेक्स वेदर ऑल द क्वेश्चंस इन ए टेस्ट आर मेजरिंग द सेम एबिलिटी और ट्रेट। जो भी क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे, ऑल क्वेश्चंस मेजर करेगा सेम एबिलिटी और टेस्ट। तो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप सपोज लीनियर इक्वेशन के ऊपर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा सब 2x + 5 = 3, कि x + 3 = 8, कि 3x - 4 = 6। तो हमारा मेन रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे और हम रूट को निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे, कि वैल्यू ऑफ y निकालेंगे। तो इसमें तो एक लीनियर इक्वेशन एक्चुअली उसका जो लीनियर इक्वेशन का मेन फॉर्म क्या है, ax + b = c। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा, क्योंकि हमारा जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो फ्रेम हम कर रहे हैं वो सेम एबिलिटी और ट्रेट को मेजर करेगा। वही है इंटरनल कंसिस्टेंसी। जो भी क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेम एबिलिटी ट्रेट को मेजर करेगा, वही है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अच्छा, होमोजेनियस टेस्ट यूजफुल फॉर, ये जो केआर मेथड है जिसको हम रैशनल इक्विवेलेंस मेथड ऑफ रिलायबिलिटी बोलते हैं, ये होमोजेनियस टेस्ट क्या है ना, जो टेस्ट आइटम्स लेंगे सिमिलर इन नेचर एंड मेजर द सेम साइकोलॉजिकल एबिलिटी। अभी मैं बताया हम लीनियर इक्वेशंस लेंगे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं देंगे, ओनली लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन रहेगा। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड? ओनली लीनियर। सपोज हम एडिशन के ऊपर टेस्ट करें, देखिए होमोजेनियस एक एडिशन, सपोज एक एफएलएन के ऊपर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर जा रहे हैं, सपोज छोटा बच्चों के लिए हम एडिशन हम टेस्ट ले रहे हैं, जैसे एडिशन का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम एडिशन का टेस्ट ले रहे हैं, तो होमोजेनियस टेस्ट है हमारा। मेन जो है क्वेश्चंस, जो आइटम्स है, जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर इन नेचर, क्योंकि हमारा मेन जो यहां पर पर्पज है, हम एडिशन के ऊपर साइकोलॉजिकल एबिलिटी को चेक करेंगे, चाइल्ड का क्या साइकोलॉजिकल एबिलिटी है एडिशन के ऊपर, उसको चेक करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होगा वो सिमिलर इन नेचर होगा, ठीक है। तो वही है होमोजेनियस टेस्ट, याद रखिए। इट इज, ये बहुत पॉपुलर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट इज मोस्ट सुइटेबल, ये जो कुडर रिचर्डसन मेथड की जो रैशनल इक्विवेलेंस मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, ये कब सुइटेबल होगा ना, जो टेस्ट क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे वो सिमिलर इन नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको सेम साइकोलॉजिकल एबिलिटी, सेम एबिलिटी को हमको मेजर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नो नीड टू स्प्लिट, यहां पर स्प्लिट नहीं होगा, तो इसलिए ये जो कुडर रिचर्डसन मेथड बेटर है स्प्लिट हाफ मेथड से, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑड क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस, उसको स्प्लिट करके फिर हम उसके ऊपर कोरिलेट करते हैं, ठीक है। मगर यहां पर कोई टेस्ट में स्प्लिट नहीं होगा, मगर यहां पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होगा, जो टेस्ट क्वेश्चंस फ्रेम होगा, सिमिलर इन नेचर होगा। क्यों सिमिलर इन नेचर होगा? क्योंकि each and every question measure the same ability, measure the same psychological ability, measure the same skill। तो वही है इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो यहां पर अनलाइक द स्प्लिट अप मेथड, द टेस्ट डज नॉट हैव टू डिवाइड इनटू टू हाफ्स। अच्छा, नेक्स्ट वन, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। जो आइटम, जो क्वेश्चन है, दे आर वेरी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, इंटर आइटम कंसिस्टेंट, इट एग्जामाइंस हाउ कंसिस्टेंटली the individual items relate to one another and to the test as a whole। Questions are very interrelated to each other। तो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, तो जो भी आइटम्स हम, जैसे मैं अभी बताया था, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर हम टेस्ट करेंगे, तो सपोज मैं फ्रेम कर रहा हूं x² - 6x + 8 = 0। अनदर इक्वेशन, इसमें हम रूट्स निकालेंगे, कि अनदर इक्वेशन दे दिया x² - 5x, ठीक है, प्लस 6 = 0। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इक्वेशंस, ओनली क्वाड्रेट सिमिलर क्वेश्चंस जो रहेगा, टेस्ट क्वेश्चंस आर सिमिलर इन नेचर, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पज है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एबिलिटी को चेक करेंगे। जो चाइल्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्या कमांडिंग है, क्या वो कितना अंडरस्टूड, कि क्या उसका
जो उसके ऊपर कितना नॉलेज है उसको हम टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट आइटम्स रहेगा सिमिलर इन नेचर रहेगा। ठीक है, तो आइटम्स आर इंटर, जो भी क्वेश्चंस होगा, जो क्वेश्चंस आर इंटर ओके कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। द इंडिविजुअल आइटम्स एक्चुअली, द इंडिविजुअल क्वेश्चंस एक्चुअली रिलेट टू वन अनदर। ओके, उसी रिलेटेड में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कभी कभी दो रूट ऐसे क्वेश्चन, दो रूट्स दे देगा, आप बोलेगा कि आप इक्वेशन फॉर्म करो। जैसे रूट्स दे देगा, एक सपोज यहां पर दे दिया, एक रूट है टू है और एक रूट है 3 है, आप एक इक्वेशन फॉर्म करो कि एक इक्वेशन दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, सपोज इसमें एक इक्वेशन दे दिया, आप रूट्स निकालो। तो जो भी रहेगा उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो इट एग्जामाइंस हाउ कंसिस्टेंटली द इंडिविजुअल आइटम्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू द टेस्ट एज ए होल। अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी, फिर होमोजेनिटी का बात आता है जब होमोजेनियस जो टेस्ट आइटम्स आर सिमिलर इन नेचर। अगेन होमोजेनिटी, जो टेस्ट आइटम्स आर सिमिलर, सेम टाइप, सिमिलर इन नेचर एंड मेजर द सेम साइकोलॉजिकल एबिलिटी। जो टेस्ट आइटम्स लेंगे सिमिलर इन नेचर होगा, क्योंकि उस ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है, हम सेम स्किल, सेम एबिलिटी को मेजर करेंगे। सो फॉर द केयर मेथड टू बी अप्रोप्रिएट, द आइटम्स शुड बी साइकोलॉजिकली होमोजेनियस, मीनिंग दे शुड मेजर एसेंशियली द सेम एबिलिटी। तो सिमिलर इन नेचर, जो क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे सिमिलर इन नेचर। सपोज आप जैसे लिनियर इक्वेशन, सपोज आप लिनियर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, क्योंकि आप चाइल्ड का एबिलिटी चेक करना चाहते हो लिनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, कि ऐसे आप क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो, इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देंगे, इसमें आप त्रिकोणोमेट्री नहीं देंगे, इसमें आप सपोज कोई मेंसुरेशन रिलेटेड की ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली लीनियर इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको चेक करना है ईच एंड एवरी जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा मेन एबिलिटी है, जो मेन पर्पज है, हम चाइल्ड का एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर उसका कितना कमांडिंग है। ओके, तो अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, दिस इज रिफर्ड टू एज इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो भी आइटम्स जो भी क्वेश्चंस रहेगा, दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर, वेरी सिमिलर इन नेचर, फॉर दैट रीजन इट इज इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसका कोफिशिएंट को मैं बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ रैशनल इक्विवेलेंस, नॉट ओनली इक्विवेलेंस। ओनली इक्विवेलेंस होगा, सेकेंड टाइप होगा, एक था इक्विवेलेंट और पैरेलल टेस्ट, इक्विवेलेंट और पैरेलल टेस्ट, इसका सेकेंड टाइप था, मगर इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रैशनल इक्विवेलेंस, जो केआर मेथड को, कूडर-रिचर्डसन मेथड को। द कोफिशिएंट प्रोवाइड सम सिग्नल्स ऑफ हाउ इंटरनली कंसिस्टेंट और होमोजेनियस द आइटम्स ऑफ द टेस्ट आर। ठीक है, उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है इसके, इज जो RTT, इट इज ए रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, जो हम बोलते हैं इसको भी बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रैशनल इक्विवेलेंस, इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रैशनल इक्विवेलेंस, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द टेस्ट। अच्छा, n है आइटम्स, n बाय, इसका फॉर्मूला है n बाय n-1 होल इनटू 1 माइनस सिग्मा PQ, मैं बताऊंगा PQ क्या है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मींस वेरिएंस। आप जानते हो जो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज, मैं प्रीवियस मेरा जो वीडियो आप देखिए उसमें मैं बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिस्कस किया था, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है RTT। और एक बार देखिए, ये जो कूडर-रिचर्डसन का जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का जो सिंबल है RTT है, इट इज इक्वल टू n बाय n-1, कितना आइटम, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, होल इनटू 1 माइनस सिग्मा PQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
n by n minus 1 whole into square of the standard deviation minus sigma pq डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन को इसको हम बोलेंगे वेरिएंस, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, वेरिएंस। ठीक है, तो आप देख लीजिए आरटीटी तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, एन है नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, पी क्या है, इसमें पी है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम करेक्टली। कितना प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स एक्चुअली आंसर्स करेक्ट दे दिया। क्यू है उल्टा, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम इनकरेक्टली। ठीक है, और आप पी निकाल दो, क्यू निकाल दो, फिर पी क्यू निकाल दो। ठीक है, इसका जो आप निकालेंगे पी क्यू देन पी क्यू, फिर सिग्मा पी क्यू। तो पी क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग द आइटम करेक्टली। क्यू क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम इनकरेक्टली। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, सम ऑफ, तो सिग्मा पी क्यू, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकाल दीजिए। ठीक है, और जो सिग्मा ये जो सिग्मा, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिंबल, एंड स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, इट इज वेरिएंस। सो इट इज वेरिएंस ऑफ द टोटल टेस्ट स्कोर। अच्छा, क्यू क्या है, सेम थिंग है। सपोज ये है प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आंसरिंग आइटम करेक्टली, तो क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी। कितना स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली आंसर इनकरेक्टली, तो सेम थिंग है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो इसे क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो इसमें एन है नंबर ऑफ आइटम्स है, पी है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली, क्यू है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम इनकरेक्टली। सपोज क्वेश्चन में पी दे दिया, तो आप क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, कि क्यू दे दिया, इट इज गिवन, आप पी कैसे निकालेंगे ना, 1 माइनस क्यू। तो पी है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम करेक्टली, क्यू है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग एन आइटम इनकरेक्टली, और सिग्मा पी क्यू, सम ऑफ पी इंटू क्यू फॉर ऑल आइटम्स, और सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर। तो इस रिलेटेड में एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम्पल, ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 50 आइटम्स एन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 7.5 है, आप वेरिएंस निकाल दीजिए, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, और यहां पर दे दिया एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग रेस्पॉन्सेस, इट इज सिग्मा पी क्यू, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस पी, एंड जो क्यू है वो प्रोपोर्शन ऑफ रॉन्ग रेस्पॉन्सेस। ठीक है, एंड यहां पर दे दिया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग रेस्पॉन्सेस। इसको जो सिग्मा पी क्यू को हम कैसे रीड करेंगे, इट इज सम ऑफ सिग्मा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द राइट एंड रॉन्ग रेस्पॉन्सेस। राइट मीन्स हाउ प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स गिवन राइट रेस्पॉन्सेस, क्यू मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स गिवन रॉन्ग रेस्पॉन्सेस। तो इसमें ये सब दे दिया, एन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, वेरिएंस आप निकाल दीजिए, सिग्मा पी क्यू दे दिया। तो आप अभी फॉर्मूला डालिए। ठीक है, तो मैं बताया था फॉर्मूला, ऐसे कर सकते हो, इट इज एन बाय एन माइनस 1 होल इनटू, ओके, 1 माइनस सिग्मा पी क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इट इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय, सेम थिंग है, आप रिजल्ट निकाल कर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जो आ रहा है 0.83 आ रहा है, तो ये है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, 0.83 रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-4 थिंग्स को आपको रिमेंबर करना है। एक है होमोजेनियस टेस्ट, जो टेस्ट आइटम रहेगा सिमिलर इन नेचर रहेगा, एंड सिमिलर इन नेचर रहेगा, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन मेजर द सेम एबिलिटी, सेम साइकोलॉजिकल एबिलिटी, इस रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। और एक आता है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मींस जो आइटम्स रहेगा दे आर सिमिलर इन नेचर रहेगा। सपोज एडिशंस के ऊपर, आप एडिशंस के ऊपर टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आपका जो पर्पज है कि एडिशन के ऊपर, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है
उसको आप चेक करना चाहते हो तो एडिशन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, उसमें आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्वेश्चंस आप ऐड नहीं दे सकते टेस्ट में। तो दो तीन चीज को आपको याद रखना है, एक है होमोजेनियस टेस्ट क्वेश्चंस आर सिमिलर इन नेचर एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन मेजर द सेम एबिलिटी और स्किल। और जो है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी सेम है, टेस्ट आइटम्स आर it means relate to each other, test items are closely related to each other, okay, and similar in nature and ability to measure the same ability or skill। तो ऐसे कुछ टर्म को आपको लेना है केआर मेथड में। चलो अभी आप जो लास्ट मेथड है इंटरेटर मेथड, एक है इंटरेटर मेथड में बताया था मोर देन 2 जजेस, ओके, ग्रेटर देन 2 जजेस, वो एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे और मार्क्स देंगे, ठीक है। सपोज यहां पर एग्जांपल दे दिया, सपोज 3 जजेस है, जज ए, जज बी, जज सी। सपोज ये मार्क सबका ये 70 आउट ऑफ 10, सपोज सब देंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। इसका 7 है, इसका 6.9 है, इसका 8.1 है। सॉरी इसमें थोड़ा और एक बार बता देता हूं, 3 जजेस है, ठीक है, हम आउट ऑफ 10, फिर हम परसेंटेज आउट ऑफ 10, ये 7 दे दिए, ये 6.9 दे दिए, ये 7.1, तो वेरी क्लोज, तो हाईली रिलायबल। सपोज एक जज 7 दिया और एक जज 5 दिया, एक जज 9 दिया, तो ये लेस रिलायबल। तो इस तरीके का टेस्ट को इंटरेटर मेथड हम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो वही सेम थिंग इट इज गिवन, इंटरेटर रिलायबिलिटी चेक्स वेदर 2 or more independent rater or judges give similar scores or judgments for the same test or observation to measure consistency between raters. Method compare the scores given by different raters or calculate their percentage of agreement. If raters agree on 7 out of 10 observations, so inter-rater reliability is 70%. So disagreement may indicate rater bias, inadequate training or a defective rating scale. तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल में भी डिस्कस किया। तो अभी हम उसी रिलेटेड में 10 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which method of reliability estimation requires using the Spearman-Brown prophecy formula? जो Spearman-Brown फॉर्मूला वो है स्प्लिट हाफ मेथड, जिसमें एक फॉर्मूला में बताया था कि RXX इट इज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द whole items, it is equal to twice of coefficient reliability of the half test। ये जो RHH है it is it means reliability coefficient of half test divided by 1 plus again RHH, ठीक है। तो जो RHH में बताया था ये है कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट, एक ऑड एक इवन, फिर हम दोनों के बीच में ऑड टेस्ट इवन टेस्ट के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो इसको हम हाउ टू रीड ना, इट इज द कोफिशिएंट, इट मींस रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट, ओके, एंड ये है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट, ठीक है। तो ऑलवेज मैं बताया था कि RXX ऑलवेज ग्रेटर देन RHH, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, what is the effect on the reliability coefficient when a test is administered to a highly heterogeneous group compared to a homogeneous group? तो reliability जब आप कैसे चेक करेंगे कि टेस्ट का रिलायबिलिटी हाई है, उसमें क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुप को आपको लेना है। हेट्रोजीनियस ग्रुप मीन्स क्या है ना, स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज। इसमें हम बोलेंगे स्टूडेंट्स having different abilities, different abilities, ये तो ये ग्रुप लेने से जब टेस्ट होगा, टेस्ट में जो स्कोर के बाद हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट वीक है। तो उस तरीके से जो वीक है उनको किस तरीके का रिमेडियल मेजर लिया जाएगा, और जो एवरेज है तो किस तरीके का क्वेश्चन उनको फ्रेम किया जाएगा, तो वो और ज्यादा मार्क रखेंगे और अच्छा बेटर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा तो रिलायबिलिटी इंक्रीजेस, याद रखिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, द Kudor-Richardson formula measures the internal consistency related to the reliability of test and is also known as the method of rational equivalence, alternate forms, temporal stability और scorer consistency. It is rational equivalence. इसको मैं बोल चुका हूं, इसका alternate नेम भी है, हम rational equivalence method of reliability बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, what is the primary operational advantage of the Kudor-Richardson method over the split half method? तो हम कंपेयर करेंगे KR मेथड और स्प्लिट हाफ मेथड में. व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज? कुडर KR मेथड थोड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज है ओवर द स्प्लिट हाफ मेथड. रीजन इज ऑप्शन बी, इट डज नॉट रिक्वायर डिवाइडिंग द टेस्ट आइटम्स इनटू 2 हाफ्स फॉर स्कोरिंग. तो जो स्प्लिट हाफ मेथड में जो हम 2 भाग कर देते हैं, ऑड क्वेश्चंस इवन करके हम निकालते हैं, इसमें जरूरत नहीं है KR मेथड में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, if the time interval between the test and retest is very short, that is a 1-2 days, एक टेस्ट हुआ, सेम टेस्ट को 1-2 days के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, तो the obtained reliability coefficient will most likely be artificially inflated due to memory and carryover effects, artificially deflated due to student maturation, exactly 0, unaffected by recall. तो ऑप्शन ए. देखिए, टेस्ट हुआ, फिर सेम क्वेश्चन का रीटेस्ट होगा जस्ट आफ्टर 1-2 days. तो स्टूडेंट्स तो जान चुके हैं क्या क्वेश्चन है, वो इमीडिएटली वो रिकॉल कर पाएंगे आंसर, क्योंकि टेस्ट दिए थे, और फिर 1 day के बाद और 2 day के बाद सेम क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे. तो उसमें डेफिनेटली तो उनका जो मेमोरी है उसका कैरी ओवर, ऑटोमेटिकली उनका मेमोरी वो रिकॉल कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, क्योंकि वो उसको प्रिपेयर कर चुके हैं. रीटेस्ट देने से पहले वही क्वेश्चन को वो एक बार कर चुके हैं. तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड, यहां पर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बढ़ेगा. तो मैं बार बार बताया कि जब रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जब बढ़ता है तो वो मोर कंसिस्टेंट. आप याद रखिए, जो रिलायबिलिटी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जब बढ़ेगा, ठीक है, ये मोर कंसिस्टेंट एंड स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी होगा. जब रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कम होगा तो वो लेस कंसिस्टेंसी, लेस रिलायबल, लेस स्टेबिलिटी कहा जाएगा. तो इस तरीके से जब शॉर्ट गैप में सेम टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? मैं बताया था इसको, उस समय भी मैं बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. एक रिलायबल टेस्ट वो वैलिड होगा, एक रिलायबल टेस्ट वैलिड होगा, एक कंसिस्टेंट टेस्ट वैलिड होगा, मगर रिलायबिलिटी एक्चुअली एक फैक्टर नहीं है वैलिडिटी के लिए. मगर हम जानते हैं कि टेस्ट रिलायबल हुआ तो वो वैलिड होगा, मगर हम ये नहीं बोलेंगे कि रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द वैलिडिटी. ओके, मेनी फैक्टर्स आर देयर. वैलिडिटी मीन्स वही वैलिड क्वेश्चन. आप बोलेंगे टेस्ट वैलिड है, कैसे? जो जिस पर्पज के लिए टेस्ट किया गया था, यदि वो फुलफिल होगा वो टेस्ट वैलिड होगा. मगर हाँ, जब टेस्ट रिलायबल होगा तब हम उसको वैलिड बोलेंगे, बट नॉट. यहां पर देखिए ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी. वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. इसके ऊपर एक सेंटेंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. रिलायबल टेस्ट एक्चुअली वैलिड वन, but it is not a sole factor for validity. याद रखिए. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्प्लिट हाफ कोरिलेशन, यहां पर RHH दिया है, RHH है 0.60 है. तो आप स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला में जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालेंगे होल टेस्ट का, तो इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए ना, इस फॉर्मूला में कीजिए 2RHH डिवाइडेड बाय 1 प्लस RHH. इसमें डालकर देखिए, ये फॉर्मूला है ना, तो आप अभी डालकर देखिए कि RXX इज इक्वल टू 2 इंटू 0.60 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.60. तो ये हो गया 1.2 बाय 1.6, तो 12/16, तो 3/4, इट इज 0.75. तो यहां पर जो
जो हम कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी निकालेंगे वो 0.75। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which coefficient is yielded when the correlation between scores on two equivalent or parallel forms administered to the same group is calculated? मैं बताया था कि आपका टेस्ट कंडक्ट आप करेंगे मगर उसमें सभी कंडीशन सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फिजिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हेन द चिल्ड्रन दे आर गिविंग एग्जामिनेशन, सब सेम रहेगा। पर क्वेश्चंस को और जो हम मेजर करेंगे सेम एबिलिटी और स्किल को, तो ओनली क्वेश्चंस को हम चेंज कर देंगे। और सेम ग्रुप क्वेश्चन, एक टेस्ट दे दिया और फिर अनदर टेस्ट सेम ग्रुप देगा, अनदर टेस्ट सेम ग्रुप, यहां पर हम सेम ग्रुप फर्स्ट टेस्ट दिया और सेकेंड टेस्ट दिया, मगर इसमें क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चंस चेंज रहेगा बट अदर सेम, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा और जो एग्जामिनेशन एक कंडीशन सेम रहेगा। तो उसमें हम चेक करेंगे कि क्या स्कोर है दोनों में। यदि क्लोज आते हैं तो हाईली रिलायबल। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सेकेंड आपका मेथड था टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज increasing the total number of representative items on an assessment generally improve its reliability? एक था कि लेंथ ऑफ द टेस्ट, तो उसमें क्या है, मोर क्वेश्चंस रहेगा। जिस टेस्ट में आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस एंड क्वालिटी क्वेश्चंस। मोर क्वेश्चंस होने से क्या है, तो जो भी सिलेबस था तो सभी सिलेबस का जो कंटेंट था वो सभी को कवर किया, तो मोर क्वेश्चंस हो गया। और क्वालिटी क्वेश्चंस देना है, फिर हम रिजल्ट को देखेंगे। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स मोर थरो सैंपल ऑफ डोमेन कंटेंट, क्योंकि जो सिलेबस था, सिलेबस में जो जो कंटेंट है सभी कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, सभी कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। तो ये पॉसिबल है जब एमसीक्यू टेस्ट आप करेंगे, सभी कंटेंट को हम कवर करेंगे सिलेबस का, तो मोर क्वेश्चंस होगा। और क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। क्वालिटी क्वेश्चंस क्या है, अब एमसीक्यू में मोर रेस्पॉन्सेस, हम 4 ऑप्शन देंगे एबीसीडी, आपको एक करेक्ट चूज करना है। ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स ए मोर थरो सैंपल ऑफ डोमेन कंटेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी साइकोमेट्रिक लिमिटेशन ऑफ इंक्लूडिंग आइटम्स दैट आर आइदर एक्सीडिंगली इजी और एक्सीडिंगली डिफिकल्ट ऑन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? एक ऐसे टेस्ट आप कर दिया, ओनली इजी क्वेश्चंस दे दिया कि ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दिया, तो उसमें क्या होगा, तो इससे हम जो बेस्ट चाइल्ड है, एवरेज चाइल्ड है, वीक चाइल्ड हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूरा इजी हो गया और क्वेश्चंस पूरा डिफिकल्ट हो गया। तो क्वेश्चंस इजी होने से सबका हाई स्कोर रहेगा और क्वेश्चंस पूरा डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरा डिफिकल्ट होने से क्या है, जो अच्छा बच्चा वो अच्छा करेगा और जो बच्चा थोड़ा एवरेज वीक है उनका मार्क कम हो जाएगा। तो उसमें नहीं है। तो आपको जब क्वेश्चन फ्रेम करना है उसमें इजी रहेगा और एवरेज क्वेश्चंस रहेगा और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। तो उसमें ये जब होगा ये हाईली रिलायबल होगा, क्योंकि हम उसमें डिटेक्ट कर पाएंगे कि हु आर द गुड स्टूडेंट्स, हु आर द गुड इन सब्जेक्ट, हु आर द एवरेज इन सब्जेक्ट एंड हु आर द वीक्स इन सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज द प्राइमरी साइकोमेट्रिक लिमिटेशन ऑफ इंक्लूडिंग आइटम्स दैट आर आइदर एक्सीडिंगली इजी और एक्सीडिंगली डिफिकल्ट ऑन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सो इसमें दे फेल टू डिस्क्रिमिनेट अमंग वेरिंग लेवल्स ऑफ एबिलिटी। ओके। इसमें हम इस तरीके का क्वेश्चन होगा, पूरा इजी हो जाएगा कि पूरा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हु आर द बेस्ट चाइल्ड, हु आर द एवरेज चिल्ड्रन कि हु आर द वीक चिल्ड्रन के बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू व्हिच एंटिटी डज ए रिलायबिलिटी कोफिशिएंट स्ट्रिक्टली अप्लाई? कौन सा एंटिटी के लिए रिलायबिलिटी कोफिशिएंट अप्लाई होता है?
the specific scores obtained from an administration, the national curriculum standards alone, the physical testing instrument in isolation, the subjective intent of the test designer. इसमें है ऑप्शन ए, द स्पेसिफिक स्कोर्स obtained from an administration. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन है, which reliability estimation method relies on independent scoring of subjective responses by multiple evaluators. मल्टीपल एवेल्युएटर्स, तो ये जो है इंटर रेटर मेथड. सपोज ये 4 जजेस है, वो आउट ऑफ 10 मार्किंग करेंगे, सपोज देखिए ये 7 दे दिया, ये 6.9 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 7.1 दे दिया. तो चारों जजेस देखिए their marks are very close to each other, even 2 judges they have given the same mark, तो हाईली रिलायबल. तो ये है इंटर रेटर मेथड, जब मल्टीपल एवेल्युएटर्स एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे और मार्क्स देंगे. तो इंटर रेटर मेथड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये था रिलायबिलिटी के ऊपर था. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था स्प्लिट अप मेथड, और उसमें स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला था, कैसे हम होल टेस्ट आइटम्स के ऊपर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालेंगे. और नेक्स्ट था कुडर रिचर्डसन मेथड, जिसमें जो था जो होमोजेनियस टेस्ट आइटम्स आर सिमिलर इन नेचर और टेस्ट आइटम्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर टू मेजर द सेम एबिलिटी एंड स्किल. इसके ऊपर फोकस किया गया, फॉर्मूला में भी बताया. तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं. तो फिर आप वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट को, और अच्छा वीडियो में लाऊंगा रिलेटेड टू द मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन. आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.